This could be another wicket. Yes, it is. 3 wickets in the over for Vanindu Hasaranga. He's broken the back of the Pakistan lower order and middle order. And Pakistan have lost their 7th wicket, falling in a heap. We talked about the brittleness of the Pakistan batting. As long as Rizwan was there, they looked like solidity. The moment his wicket has fallen, Pakistan have lost 2 more in quick succession. 19 गेंदें 59 रन, स्ट्रोक खेलना लाजमी था, लेकिन हसरंगा का ये ओवर इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। अगर श्रीलंका यहां से इस मैच को जीतता है, जिसकी की संभावना बहुत प्रबल हो चुकी है, हालांकि टी20 क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब यहां से पाकिस्तान इस मैच को जीतता है तो चमत्कार होगा। प्रकाश कॉट तीक्ष्णा बोल्ड हसरंगा 2 रन 4 गेंदों पर 112 के स्कोर पर पाकिस्तान ने अपना 7वां खिलाड़ी खो दिया है। Absolutely, and I think this is where sometimes thinking is a problem. With Hasaranga on fire, he's bowling his last over, Vinit. There are still 3 overs after that, and there will be opportunities. Clearly, there'll have to be some quick bowling that'll have to come in, and I think Pakistan miscalculating that they have to take on the leg spinner, and they've paid the price. स्ट्रोक खेलने दिमाग जरूर कह रहा होगा हसरंगा के गिनी चुनी तो गेंदें बची हैं, शांति से खेल ली जाए। 27 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। 1 गेंद शेष है, अपने जो कोटा है उनके 4 ओवर्स में, उसमें 1 गेंद शेष है। ऑफ स्टंप के बाहर सीधे रहती हुई गेंद को पुश भर किया, कोई जल्दबाजी नहीं। और अब हारिस रऊफ आए हैं खेलने के लिए। 17वां ओवर समाप्त हो गया। पाकिस्तान को अभी भी 59 रन चाहिए। पाकिस्तान 7 खिलाड़ी खो चुका है 112 के स्कोर पर। And as we say again, we said in the first innings as well, the 17th over doing a lot of magic. In the 17th over, at the end of it, Sri Lanka were 136 for 6. Pakistan are now 112 for 7. So now the gap has widened. 24 runs the difference. 1 extra wicket. And 3 first ball ducks in this match. Gunatilaka, Fakhar Zaman and Asif Ali, says Jatin Sood. That doesn't happen too often, even in T20 cricket. And suddenly someone's now, the Sri Lankans, the drums must be playing, and a good move by the skipper. He's brought Tikshana on for his last over so that he puts the pressure back on Pakistan. Tikshana bowls outside edge, running away towards the 3rd man boundary. Will the fielder drag it in? Doesn't look likely. 4 runs. REC energizing Chauka. So Shadab Khan getting an outside edge, running down to 3rd man. 4 runs. Good start to the over from a Pakistan perspective. Not so much from Sri Lanka, but again this was a wild hike. There wasn't a plan here, Vinit. 3rd मैन दायरे के अंदर ले रखा है, उसके बाद वाइड हाफ वॉली कर रहे हैं। आज उनकी इन स्विंगिंग इन डकर्स चल नहीं पा रही हैं और ये ऑफ स्टंप के बाहर वो बॉलिंग कर रहे हैं। Tikshana to Shadab, nice and full this time, looking for the Yorker length and achieving it. So Shadab can do no more than just dig it out. 4 balls to come in the 18th. After that, there'll be 2 overs. The target is 171. The current score is 116. What is Iftikhar thinking? It was his wicket that began the slide. At that point, Pakistan looked completely in control. Here's Tikshana, bowls. And full toss over the bowler's head. Hit firmly by Shadab. He'll only get 1. I think Pakistan look like they've given this up because the body language didn't even look like the 2nd run was being attempted. You don't see that with Pakistan very often. They're always fighting till the last ball. But on this occasion, it looks like a bridge too far. 93 रन 2 विकेट पे पाकिस्तान का स्कोर था, जिसको वो 112 पे 7 विकेट हो गए, यानी कि 19 रन बनाते बनाते उन्होंने 5 खिलाड़ी और खो दिए। धन्यवाद जतिन। 5 for 19. Here's Tikshana again, bowls, and this one's hammered down to long on again, just a run. I'll tell you who will be having interesting thoughts. Chris Silverwood, who is the Sri Lankan coach, would be thinking about his previous team because they're the ones who are famous for these kind of collapses. 6 down to 30, 19 runs, 5 wickets, that kind of stuff. But today he's on the other side, and I just see a picture of Naseem Shah, who's got his pads on and ready. Shadab flicks this away on the onside. They'll get 1. Maybe they'll think of a 2nd. They are thinking of a 2nd, and there could be trouble. No. I think Tikshana has not collected the ball. He's upset with himself. The man would have been out of his crease. The throw was very good by Bandara, who's done a great job in the field, but Tikshana has not had the best day. Didn't collect the ball, broke the stumps with his hands, but the batsman is home. So 2 runs have been completed. Of course, the 3rd umpire will give his decision, but I think it looks pretty clear here. Here it is, Vinit.
on our monitors. Yeah. हाथों से स्टंप्स को बिखेरा बॉलर वाले छोर पर, और ये कोई पहला अवसर नहीं है इस टूर्नामेंट में जब बॉलर वाले छोर पर बॉलर तीक्ष्ण गेंद को एक अच्छे खासे थ्रो को गैदर नहीं कर पाए। उनको कोई ज्यादा विशेष नहीं करना चाहिए, करना था, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर आ रही थी गेंद। Very, very good throw, but maybe in the context of the game now it may not matter because Shadab is on 8, Rauf is on 1, and the last ball of the 18th over, Tikshana. This one's been hit high and mighty. I don't think he's got the elevation or the distance. Brilliant catch. Pakistan lose their 8th, and Tikshana has finally picked up a wicket. So Pakistan 120 for 8. I think we might as well now be saying that this is short of an absolute miracle. This is going to be a victory for Sri Lanka. पाकिस्तान और श्रीलंका एक दूसरे के साथ चौथी बार एशिया कप का फाइनल मैच खेल रहे हैं। श्रीलंका जीतकर अब भारत के समकक्ष आ जाएगा 6 बार एशिया कप जीतने के लिए। ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे ऑफ साइड में सीधे फील्डर के पास। ऊंचे कैच इस मैदान पर पकड़ने आसान नहीं है, लेकिन क्या बखूबी पकड़े हैं, जबकि अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान पर हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी जिसके भानु का राजा पशका ने बहुत की थी, लेकिन धनुष का गुना तिलका ने जिस तरह से कैचेज आज बाउंड्री लाइन पर पकड़े हैं, तारीफ काबिल। एक हाथ से डाइव लगाते हुए गिर गए, संतुलन बिगड़ गया, लेकिन गेंद को अपने हाथ से गिरफ्त में से बाहर नहीं जाने दिया। 18 ओवर पूरे हो चुके हैं, 120 8 विकेट पे स्कोर है। रऊफ है और अब नसीम शाह, जिनको की बड़ी ख्याति मिली है, बड़ी प्रशंसा हुई है कि 2 गेंदों पर छक्के लगाए, 2 फुल टॉस किस्मत में से उनको मिली। और जो अभ्यास कोच उनके कराते हैं मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ यूहाना थे, और सकलैन मुश्ताक मुख्य कोच हैं पाकिस्तान टीम के, तो उनके बॉलर्स भी छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कब तक, आखिर कब तक, क्योंकि 12 गेंदें हैं और अभी भी 51 रन बनाने हैं। नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मधुशन का 1 ओवर शेष है। उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है अब तक, और उनको जिम्मेदारी दे दी है इस महत्वपूर्ण 19वें ओवर की कप्तान दासुन शनका ने। और देखते हैं कि क्या करते हैं नसीम शाह। हेलमेट पहने देख रहे हैं ध्यान से बॉलर की ओर, और दौड़ना शुरू किया। दाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे, कोई नजदीकी खिलाड़ी नहीं है। ओ बहुत ही दिशाहीन गेंद, ऑफ लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, और सीधी भी होती तो फुल टॉस थी, विकेट कीपर के पास गई बिला वजह। 1 रन भी मिलेगा और एक उनको बॉल भी अतिरिक्त करनी पड़ेगी। इस गेंद की गिनती नहीं होगी। ऐसे मौके पर जब चढ़कर खेल रहा है श्रीलंका, हो सकता है नई स्पेल है, हाथ से फिसल गई हो गेंद। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान की कुछ उम्मीदें जगी। थोड़े से दर्शक दीर्घाओं में पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, उनकी उम्मीदें जाग उठी हों जैसे। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। रन रेट इस समय 6.3 का है। 19 रन पर 5 विकेट खो दिए पिछले 3 ओवर में। खेलना कहीं और चाहते थे, वहां फील्डर मौजूद था, लेकिन उसके सर के ऊपर से स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ चली गई। नसीम शाह ने जबरदस्त स्ट्रोक खेला था उस पर। खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद पीछे पॉइंट की पीछे की ओर गई, थर्ड मैन स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ। बाहरी सिरा लगा, पॉइंट दायरे के अंदर था, या थर्ड मैन आप शॉट कह सकते हैं, दायरे के अंदर था, उसके सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन के लिए। REC energizing चौका। 46 of 11 विनीत। ऑफ साइड में थर्ड मैन से काफी अंदर लगाया गया है वो खिलाड़ी, और इस बीच जिस तरह के विकेटों का पतन हुआ, दायरे के अंदर, लेग साइड में, फाइन लेग के अंदर, फाइन लेग जबकि अंदर था दायरे के अंदर, कैच पकड़े गए हैं। 11 गेंदें 46 रन। प्रतीक्षा करेंगे, जबकि सामने नसीम शाह है। हाफ वॉली, थोड़ी सी वाइड, ड्राइव किया, सीधे फील्डर की तरफ जा रही है, फील्डर मौजूद है, और इसके साथ ही आउट। 9वां खिलाड़ी आउट हुआ श्रीलंका का। क्रिस सिल्वरवुड कोच ने सहमति में सर मामूली सा झुकाया, और 9वां खिलाड़ी पाकिस्तान का पेविलियन का रास्ता नापते हुए। Well, another wicket, and now the 4th wicket for Madhushan. We've said this in the past in this tournament about Sri Lanka, that they don't necessarily have superstars. They don't necessarily have a single player who turns the game. They've always made a team effort, and here in the field, with the ball and in the field, you see how everybody's contributed. The Usain Bolt-like action,
by? None other than चमेका करुणारत्न. He's the only man who's allowed to do it. और नसीम शाह को अनुभव प्राप्त होगा. हर बार नहीं आपको फुल टॉस मिलेंगी, और फुल टॉस भी किस खिलाड़ी से जो लगातार यॉर्कर करने की क्षमता रखता है. फरूकी अफगानिस्तान का क्या बॉलर है, युवा बॉलर है, और लगातार जब चाहता है वो यॉर्कर करता है. वो यॉर्कर की लेंथें बिगड़ गई, 2 फुल टॉस मिल गई, छक्के लग गए. कोई बात नहीं, युवा खिलाड़ी है नसीम शाह, एक अच्छा करियर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है. लेकिन बहरहाल प्रतीक्षा पूरा श्रीलंका जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं से गुजर रहा है, उठकर दोबारा खड़ा होना चाह रहा है. और उनके खिलाड़ियों ने आज उनको ऐसे गौरवशाली दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है. धीमी रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, काफी नीची रहती हुई, उस पर कुछ कर नहीं सके. विकेट कीपर के पास गेंद चली गई. और अभी भी श्रीलंका हावी है. 9 गेंदों पर 46 रनों की आवश्यकता है. लगभग असंभव सा लग रहा है. 9 छक्के कितना होता है? 54. अगर हर गेंद पे छक्का लगेगा तब कुछ जाकर बात बनेगी, या कुछ वाइड और नो बॉल्स हो जाए. Statistically possible, practically probably not. आतिशबाजियां चलाई जा रही हैं, कुछ रॉकेट्स अंतरिक्ष की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके साथ ही श्रीलंका की उम्मीदें भी बढ़ती चली जा रही हैं. ये गेंद बढ़िया स्ट्रोक खेला, उसको जमीन पे चिपका हुआ, घास पे लुढ़कती हुई गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्ड कर ली जाएगी. लेकिन सिंगल से श्रीलंका को परेशानी नहीं, और पाकिस्तान का काम बनने वाला नहीं. Well, 45 now of 8, Vinit. Yeah. So 8-6 of 48, if my math is right. और अब श्रीलंकाई खिलाड़ी कुछ मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा सकते हैं. किसने सोचा होगा 58 पे जब 5 विकेट इनके गिर गए थे, जब कप्तान दासुन शनका आउट हो गए थे, कि वो इस मैच को जीतेंगे या वो अपनी पारी में 170 रन बना लेंगे. और लेकिन राजापक्षे ने 45 गेंदों पे 71 रन बनाए और फुल टॉस पे खेलने की कोशिश की, और वहां फील्डर मौजूद था, डाइव लगाकर पहुंचने का प्रयास किया, पहुंच नहीं सके, असफल रहे. नहीं तो आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती पाकिस्तान टीम. लेकिन 4 रन मिलेंगे. वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है, और पाकिस्तान का स्कोर 130 9 विकेट पर. एक गेंद शेष है 19वें ओवर की, और फिर अंतिम ओवर. नो बॉल का इशारा अंपायर का, और Free hit now, Vinit, because the no ball has been signaled. क्रिस सिल्वरवुड बेहद खफा हैं और उंगलियां उठा उठाकर वहां खिलाड़ियों को कुछ कह रहे हैं. एक ऐसे मौके पर जहां जीत दस्तक दे रही है, एक ऐसी गलती. बहरहाल मधुशन चले, उनकी ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर. देख रहे हैं स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ, फिर से वाइड गेंद का इशारा आ रहा है अंपायर का, और फ्री हिट का इशारा आ रहा है बॉलर वाले छोर पर मुकुल अंपायर का, जो कि बांग्लादेश का है. ऐसी ही पारी की शुरुआत हुई थी, और ऐसा लगता है ऐसे ही पारी की अंत होने जा रहा है. Yeah, I think earlier it was nerves, now it is excitement. Just need to keep their cool. Sri Lanka have done all the hard work here, Vinit. They want to make this a strong victory, not just a victory. And all they have to do is keep bowling in the right spot. फासला इतना ज्यादा है कि इस तरीके की गलतियों का कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है. देखें फ्री हिट पे क्या होता है. यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, सीधा स्ट्रोक खेला, फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा, और एक रन डालेंगे भी तो उससे इस बार बूंद बूंद से घट भरने वाला नहीं है. और श्रीलंका एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसे समय में जबकि श्रीलंका के सारे नागरिक जूझ रहे हैं और पूरा विश्व उनका समर्थन कर रहा है कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकें. श्रीलंका के खिलाड़ियों ने उनको एक नया जीवन दान दे दिया है. ये नहीं भूलना चाहिए कि एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप में भी श्रीलंका के खिलाड़ी आज फाइनल खेलने वाले थे. नेटबॉल ज्यादातर महिलाओं का खेल है, और उसमें भी श्रीलंका आज फाइनल खेलने वाली थी. मधुशन की अगली गेंद स्टंप्स के पास से उन्होंने की, बहुत लेट खेले लेकिन स्विंग कर दिया. गेंद जा रही है स्टैंड्स में, वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 6 रनों के लिए. Well, there we have the equation now. 19 overs have been completed, 139 for 9, 32 runs required of 6 balls. And I tell you, I don't know if there's another twist in this tale, but clearly right now Sri Lanka have to just make sure that they bowl 2 dot balls or 3 dot balls and the game is in the bag. But the wides and no balls have to stop, Vinit. 1960 में जो पहला टाई मैच हुआ था ब्रिस्बेन में,
ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में फ्रैंक वॉरेल ने जाके वेस्ली हॉल को कहा था, डोंट बॉल ए नो बॉल और ए वाइड मान इफ यू वांट टू गो बैक टू वेस्ट इंडीज. 19 runs coming off the last over, is it? That's the most expensive over of the match, because in the Sri Lankan innings it was 16, and guess who has the ball in his hand to bowl the last over? None other than Shamika Karunaratne. 6 गेंदों पे 32 रन. The man with the amazing eyes. The Sri Lankan players must be expectant but tense. Here's the first ball. Goes in, bowls, short bouncer, keeps it in control. The first look from the wicket-keeper, Kusal Mendes, was towards the square leg umpire to see whether he'd widened his hands. He hadn't, so it's a legitimate delivery. No problem. Sri Lanka on the cusp of winning the Asia Cup for the 7th time if these next 5 balls don't yield the runs that are required. 32 required, so technically, if they don't bowl any wides or no balls, Pakistan cannot win. But stranger things have happened. Here's Karunaratne again, comes in bowls, swing, will not go to more than a single, I think, and this surely now is going to be Sri Lanka's Asia Cup to lift, as Vinit and I watched this along with Jatin Sood, our scorer, and Manoj Kumar, our statistician, and I think for a lot of people in Sri Lanka, this will be huge amount of succor, huge amount of motivation in tough times. As Vinit said, economic, political, living standards, all of that, and sport can be a healing touch. Pakistan, suffering with its own problems of floods and other things, might not have the same amount of joy, but they can be proud of their team. One more run down to long on, and now an impossible 30 runs of 3 balls required. Sri Lanka waiting at the boundary. Sri Lankan supporters with the flags waving here in the Dubai Stadium. जिस तरह से शर्मसार हुए थे टूर्नामेंट के पहले मैच में, उद्घाटन मैच में अफगानिस्तान ने उनको पटकनी दी थी, उसके बाद से क्या वापसी की है. लगातार 4 मैच जीते हैं और ये 5वां मैच जीतने जा रहे हैं. श्रीलंका की इस युवा टीम में, जिसमें कि औसत उम्र आप देखेंगे 25-26 वर्ष से ज्यादा नहीं है, युवा खिलाड़ियों ने करिश्मा करके दिखा दिया. ये चमत्कार से कम नहीं है. Swing and a miss. And remember, Sri Lanka are the official hosts of this Asia Cup. So once again, the hosts, without the pressure of playing at home, away from home, creating a situation which is now about to give a huge amount of joy to the Emerald Isle. Some of the most wonderful people in that country, the smiles, the nature, all of it just absolutely magnificent. And some of this has to rub off on that nation. Chris Silverwood seeking redemption, having had a disastrous time as England coach, as Sri Lankan coach. This one's been hit in the air. Is it going to clear the field? Yes, it does. So one more big hit, 6 runs to Harish Rauf and to Pakistan, 147 for 9, 1 ball remains, and of course the required runs impossible to be had off 1 delivery, as long as Karunaratne keeps it to a legit delivery. ये लगभग उसी तरीके का है कि जबकि बुझता हुआ जिया एक बार तेज रोशनी देता है, उस तरह से ये छक्का है. 147 9 विकेट पर, और हसनैन 8, हरीश रऊफ जिन्हें ये छक्का लगाया 8 गेंदों पर 13 रन. खुशी की लहरें. इस बीच ये गेंद और जाके सीधे स्टंप्स पर, और कौन, करुणारत्ने. कभी हार नहीं मानता ये खिलाड़ी. बोल्ड आउट कर दिया. पूरी श्रीलंकाई टीम मैदान पर आकर एक दूसरे के गले लग रही है. क्रिस सिल्वरवुड के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है, जैसा कि ये श्रीलंका के समूचे देश के लिए और भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका क्रिकेट का ये जो बदलाव है, ये जो एक नई सोच है, वो पूरे क्रिकेट जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और अगर कोई टीम जीतना का सिला रखती थी, कोई दमखम रखती थी और जिसको जीतना ही चाहिए था, वो कोई टीम थी तो वो श्रीलंका थी. बहुत ही श्रीलंका क्रिकेट के इतिहास का बहुत ही गौरवशाली क्षण है और जिसको कि बरसों तक याद किया जाएगा. भारत हालांकि इस टूर्नामेंट में कोई विशेष कर नहीं पाया. रिजवान ना होते तो पाकिस्तान का क्या हश्र होता. आपको याद होगा कि पिछले मैच में लगभग 50 गेंदों तक एक भी चौका नहीं लगा था स्पिनर्स के खिलाफ. आज रिजवान ने कुछ सिंगल्स दौड़े थे, लेकिन ये सारी कहानी दोहराई जाएगी बरसों तक, लेकिन विशेष तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में, जिसको कहते हैं, हम बुलाते हैं हीरो ऑफ द 2020. इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं और निश्चित रूप से हर व्यक्ति